This couple of conference things I will would now be recorded. couple of things I would want to bring to the attention of everybody is that whatever I would be saying on this virus has been information for the last 7 months. Remember, it was founded or discovered in December 2019. That's the reason COVID-19, the the letter 19 comes from the time it was discovered. So the knowledge of the entire medical community, myself, you, and all the entire scientific community is only for the last 7 months. So this can be true, this can change tomorrow, this can be something different uh, in the time to come. So I think as of now, we whatever we decide right now, we I think we have information of the last 7 months. So I would just take a little brief what the plan of today's meeting was, that first 15 questions to be answered, and that way. So at the beginning, it's a respiratory virus which belongs to the SARS family. So obviously, transmission is through the air we breathe, and the transmission is from a person who's COVID positive, and when he coughs or sneezes. So the human cough or sneeze is known to have a diameter of 6 feet. That's the reason the social distancing norm of 6 feet has come into play, because nobody can really cough or sneeze beyond 6 feet. And if at all you're in that diameter of 6 feet and you're close to a COVID positive individual who's just coughed in the air without, or sneezed in the air without covering his mouth, then that airborne virus can then enter your lungs. It seeds in the lungs, and from the lungs it spread to the other part of the body, causing whatever damage and inflammation it has to cause. So this is in basic what the SARS or the COVID-19 virus does. Why is it a problem as of now? Because it's an unknown enemy for our immune system. So imagine when the first caveman, the first primitive man, must have come across a common cold virus. The common cold virus was new to his immune system or her immune system, and it must have caused as much of havoc as COVID-19 is causing today. But today, when we talk of common cold virus, there is absolutely zero mortality or morbidity at all because of it, because by now our immunity over the years have identified common cold, and we can manage it easily. So same will happen with COVID-19 in the years to come. But till that time, we have to be careful, because our immunity is finding this new threat extremely new. It does not know what the enemy is capable of, and therefore the enemy quickly can launch an attack against our immune system. So because it's a new virus, we are having so much of problems of health in the world. uh, so I look upon COVID-19, like, to give a simple example of swimming. Like, people in this entire audience, those who know swimming today will not think twice before jumping in the water and taking a good swim and feeling refreshed by it. But people who don't know swimming, or even the swimmers who know swimming, and imagine the first time they must have jumped in the pool, imagine the apprehension they must have had. Ankit bhai, my camera, yeah, friend. Good, I'm finally visible. I was trying to switch on my camera for a long time. Somehow it didn't give me the access from here. So I hope I'm visible to everybody. Thank you so much. Yes, Right. So yes, sir, you're visible. Thank you, sir. right. So as I was saying, basically, so it's like the fear of swimming. The moment you are aware of what's in store, you don't fear it. So similarly with COVID-19, once you're aware of the virus, the immunity can tackle it. So my first point to this entire gathering is knowledge is power, and from where you take your source of knowledge then matters. WhatsApp universities, friends, rumors, gossiping are should not be our sources of information. So the first point I would want, and everybody could make a note of this, is that the CDC, Center of Disease Control US, World Health Organization WHO, and from the Indian perspective, ICMR, Indian Council of Medical Research. Please and only please base your knowledge and your information from these three sources. Especially the WHO and the ICMR are available in user-friendly languages, and absolutely it's real-time information. If you log in right now, what's happening as of this 7 o'clock evening, you will come to know. So first, keep your source of knowledge very, very proper, very, very authentic, because knowledge is power. Once you have proper knowledge about COVID-19, the fear factor goes away. So what does this knowledge so far has told us? It has only told us five things. One, social distancing. Number two, mask. Number three, hand hygiene. Number four, nutrition.
And number 5, exercise. Other than these 5, I know I'll be asked questions, and I've been answering them in my practice every single day and including webinars such as this. Other than these 5, is it transmissible through vegetables? Is it transmissible through non-vegetarian food? Is it transmissible through the groceries you buy? Is it transmissible through anything else? Or is other modalities of medicines to boost up immunity good for you? Everything else, whatever you have heard, equally I have heard, and the authenticity of others are not proven. Let's put it that way. I don't want to say they are wrong, I don't want to say they are right, but the authenticity of these 5 is the only thing proven in COVID-19, that you have to maintain a social distance. So beyond 6 feet, the virus cannot travel, and therefore it falls short before it can reach your nasal cavities. You have to wear a proper mask. And when I say proper, it means just covering your nose and the mouth both. And the mask can be of any material. A cloth can do, a dupatta can do, a handkerchief can do. Need not always be a surgical mask worn by doctors. Hand hygiene. Traditionally, hand hygiene has been looked upon as the most effective modality of treatment for anything. Doctors do it, the patient should be doing it, everybody should be doing it. Nutrition. Good nutrition always will boost up the immunity, and exercise. We'll touch upon these 5 points again when we come to the end of the talk. So first, I said about the source of knowledge. The knowledge has told us these 5 things. From these 5 things should allay certain anxieties. So what are the anxieties? The anxieties are about coming to a hospital. So coming to a hospital, remember, if the hospitals or doctors or clinics were sources of infections, why wouldn't they quarantine us? A hospital would be shut, a clinic would be shut, a hospital would be quarantined, a doctor would be quarantined. So if at all they are quarantining societies and people and not hospitals and clinic, in simple words, a hospital or a clinic does not spread infection. We treat infection. We take utmost precautions in our setup to ensure you and your family do not get the infection from the hospital visit. So first, get the anxiety out that visiting a hospital is going to make you more sort of prone for the infection. So that brings me to the next point. Then when should you be visiting the hospital? So till 6 months prior, in the month of December, November, if I used to get a phone call of I'm having a little of mild sore throat and fever, what do I do? And on the phone also, I could tell my patient, just gargle it out, steam it out, and some basic medicines. But today the time has changed. COVID-19 has known to cause certain respiratory symptoms like cough, cold, fever, certain abdominal symptoms like loose motions, certain other symptoms as we discover them, new body pain, back pain, headaches, so some new symptoms like loss of taste, loss of smell. So these are symptoms of COVID-19 known so far. The red flags include what? So four red flags I would want everybody to understand. Red flags are the ones where you don't sit at home anymore and you should rush to a hospital. So red flag number one, if you fall in a vulnerable subset. By that I mean anybody with a little low immunity, and that includes elderly people, smaller children, pregnant ladies, cancer victims, people with uncontrolled diabetes, uncontrolled blood pressure. Mind you, I'm using the word uncontrolled, not well controlled. So whoever sugars, BP, asthma, these diseases are uncontrolled, they are vulnerable. So in these people, if these COVID-19 symptoms are seen, do not waste time, seek medical attention immediately. That's red flag number one. Red flag number two, if you do not belong to the vulnerable subset, you are a fit, healthy 40-year-old person without any of these other conditions within you, then you can maybe observe for the cough, cold, fever after maybe even seeking teleconsultation with a doctor. But then over the next some hours or 24 hours, you become too overtly breathless. You have start developing more fever and cough. And a simple tool to keep in the house is a small pulse oximeter. If the pulse oximeter goes less than 95%, that's a red flag to visit a hospital. That's number two. Number three, red flag is basically where for some reason the nutrition has gone low, the intake has gone low. So you have a patient who's not that having that much of fever, that much of low oxygen levels on the finger, but for some reason is not eating. Now that's a red flag, because the moment your nutrition goes low, your immunity goes low, you become dehydrated, and with whatever medicine the doctor has given you, you're liable to start developing side effects of those medicines. So primarily then a red flag becomes low nutrition as well. So if you have these three red flags, seek medical attention. Today, the modalities of seeking medical attentions are brilliant. You can resort to teleconsultation, which has been approved by the medical councils of the country as legal way of consultation.
If on teleconsultation the doctor feels on seeing you on a video call that you need to come to a hospital, you should go to a hospital as soon as possible and then seek attention there. So as far as medical attention, then there are three kind of facilities available: quarantine centers, COVID care centers, and COVID hospitals. So quarantine centers are primarily for people who are mildly or absolutely with not much of symptoms. Imagine somebody has a positive patient in his family and the others are contacts. And especially that household has a situation where there's too much of crowding, 7, 8 people are living in a small flat, for example, the washroom is common. So the quarantine centers primarily are meant for such kind of people. So I repeat, it's meant for an overcrowded household. It's meant for absolutely mild to asymptomatic individuals. That's quarantine centers. COVID care centers are one step beyond a quarantine center, where basically you have those kind of moderate kind of patients where they need some oxygen supply, they need some pulse and blood pressure monitoring at times, some sugar to be noted, some blood pressure to be noted. So they are basically hospital facilities, but not as like an intensive care or something. And lastly, COVID hospitals are the ones where intensive care, nursing care, high dependence units are in place where these individuals who require high kinds of oxygen, maybe ventilatory supports are placed. So these are the three kinds of steps in the care of a COVID individual. Depends upon your symptomatology and what your doctor guides you. You can be placed in any one of these. Today is also a time where even home isolation, home quarantine is a very viable option, especially if you are not that symptomatic and you follow the basic guidelines given to you. So that's those. That's then if you add the home isolation, those are the 4 levels of care and treatment available for COVID-19 individuals. So having said that, these are the basic outlines of COVID. Let me address a few myths at this juncture itself. So, myth number one: does a healthcare worker get the infection back home? So, I would want to very clearly say here that social distancing has been advocated, not social discrimination. So, a nurse or a doctor or a healthcare worker living in a society is not carrying infection back home. Today, you all have heard of COVID-19. Let me remind this audience, what about tuberculosis? What about HIV? What about jaundice, typhoid, dengue, malaria? We as doctors and healthcare workers have been fighting with infections our entire professional career, and we were carrying the infections of all these equally deadly viruses back home, then our family would have been threatened, our families would have been sick all the time. So first thing is, please do not be scared of a healthcare worker carrying the infection back home. So no social discrimination. Number two, the groceries you buy, should you keep them for 6 hours, eight hours in a corner and not handle them? Nowhere in these guidelines, and when I say guidelines, I basically mean CDC, WHO, ICMR has ever issued any guidelines about the groceries not to be handled. It's all about you handle the groceries and you wash your hands. So that same logic applies to the person providing the service to you. So whether it's a maid working in your house, whether it's a grocery owner getting the groceries to your shop, to your place, sorry, whether it's a vegetable vendor giving you vegetables. So as long as you are just washing your hands immediately after handling those items, you're safe. And what about hand washing? It's 20 seconds. Nice, clean soap and water. It's far, far, far more effective than your alcohol disinfectants, which you use many times. They should be actually be used only if soap and water is not available. Otherwise, running water and simple slow soap is much more effective than any other alcohol disinfectant. And how do you know 20 seconds? The happy birthday song. So we all know the happy birthday song. We have been singing it from school time. So if you just hum the happy birthday song in your mind, and by the time you finish that tune, 20 seconds are roughly up, and then you can end your hand wash, because you can't keep on looking at your watch when you're washing your hands, can you? So that's how you do the hand wash. That's helpful to keep the virus under control. uh, uh, about consumption of food. So non-vegetarian food, for those who must be having it, does not transmit COVID-19 at all. Just because the virus was discovered in the wet markets of Wuhan in China, the source obviously must have been from an animal, but it has jumped. What happens is, just like humans have viruses, the animal kingdom, the bird kingdom also have the viruses. And the more interactions which are happening between humans and animals, more these viruses can jump from one species to another.
So tomorrow, even a human virus can affect an animal or a bird virus and cause a lot of morbidity and mortality in them, just like their viruses are causing to us. So that does not mean that consumption of non-vegetarian food makes you prone for COVID-19, as long as you're taking the adequate precautions. That's the third myth. Fourth, about gloves, I see a lot of people wearing gloves outside. Again, referring back to my original sources of ICMR, WHO, and CDC, nowhere have gloves been advocated. You're just you're just spending money for no reason. Actually speaking, look from a logical perspective. We just said, all doctors said that washing hands a lot of times in a day will prevent infection. Now, what happens when you wear gloves? Your hands within the glove obviously remain clean. They don't come in contact with anything else. But what about the glove? That same glove, now imagine, close your eyes for a minute and just follow my train of thought. That gloved hand is reaching inside your pocket to retrieve your mobile. That gloved hand is making you adjust your mask. That gloved hand is opening the door handles. That gloved hand is touching your car steering wheel, other door handles and knobs, touching armrests of a chair, tabletops. The same gloved hand is touching so many places, and ultimately you are not washing the glove, are you? So in other words, the risk of contamination actually from a gloved hand is much more than from a naked hand, because naked hand, you are constantly aware that you need to wash every in between. So the logic, if you therefore you go to a hospital or a clinic, you'll hardly find doctors wearing gloves. We will wear them if at all we are conducting some procedure on a patient or an operation or something. But otherwise, simple outpatients, we would just wear a mask and that's about it all. So really speaking, what helps is a mask. That's very important. When it comes to coughing and sneezing, again, the age-old techniques of sneezing into the elbow or in the handkerchief or a tissue paper is very much important, or coughing to prevent spread. And my last point before I start taking discussions and questions is that it's nothing to be scared. I see a lot of scare and anxiety in people due to COVID-19. The first reason not to be scared is you are inviting the same trouble you're scared of. Because in the list of things which decrease your immunity, one of the things is anxiety and scare and fear. So the more scared and the more feared you become, the more is the open invitation to get COVID-19. So first, get the anxiety and the fear out. Second, we all the participants in this webinar have outlived, I would say, one epidemic, and that's H1N1, which all of us went through in 2008, 2009. Okay, we've all survived. We are all survivors of that one epidemic. And if you remember, even at that time, the advice was the same: keep social distancing, keep masks on, have hand hygiene, and nothing will happen to you. Now, what has happened, if you actually see as 21st century people like you and me, this was always traditionally practiced in our households. Remember your grandparents, your parents also, when before the moment they entered the house, first they used to go and wash their hands and feet before they even came to talk to you. Remember those people, they used to exercise a lot. Remember those people, they used to have their fruits and salads and nutrition on time. Sunlight was abundant. They used to go and sit in the sun to a large extent. Now, our generation, for some reasons, have given up these healthy habits. So the way I look upon it, it's nothing new that in some years before we had H1N1, now we are having COVID-19. In some years down the line, we may have something else. Till we do not adopt these age-old healthy practices, this is not rocket science. I mean, if you go back to school today, a school will tell a school child the importance of hand hygiene and how you should be eating your fruit and vegetables and how important is exercise. Somewhere we have given it up, and therefore these infections are on the rise. The moment we realize this, and the moment we start doing these things, that is how we overcome COVID-19, and whatever infection then still come our way, we'll always emerge victorious. So having said that, I think in the last 15-20 minutes, I've tried to give a brief overview of COVID-19. So I would request CA Ankit or anybody to sort of open the floor, and I can take questions and discussions, whatever they are. Yes, thank you, sir. Sir, the first question is, sir, actually many participants are requesting that we should go in Hindi because they are sitting with their family members. You had asked me the same. Okay. So let's go in Hindi, sir. Yes, sir. सर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सर ये है कि अगर किसी को कोविड होता है एक बार, तो क्या वापस उसको होने का कुछ चांसेस है या नहीं है? 100% चांस है.
बिकॉज एक बार होने से दोबारा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल एक गलत सोच है। बट ये कहकर मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार अगर कोविड हो जाता है तो आपके बॉडी में एक प्रकार की इम्यूनिटी फॉर्म हो जाती है, एंड वो इम्यूनिटी आपके सेकंड अटैक को बहुत हल्का या माइल्ड कर देती है। कहने का मतलब सेकंड अटैक होगा जरूर, लेकिन डेफिनेटली माइल्डर देन द फर्स्ट अटैक। सर ये जानना Yes. हवा में Sir, second question ये one second. मयूर भाई, can you mute all? हेलो Yeah, Hello. I can hear you. यस सर Yes. सर मुझे सुधीर ये जी? जानना यस यस आई एम सुधीर आप मुझे I ये जानना request था सर कि participant not to directly ask the question. हेलो कैन आई स्पीक राइट नाउ Normally, sir, I will request the participants to put your questions on the chat box. But now you can speak. For a moment, you can speak. Sudhir, please go ahead. Sorry, sir. Sir, the second question ऐसा है कि अगर किसी का ऑक्सीजन नॉर्मली कोई यंग पर्सन या सीनियर सिटीजन का इट इज 92, 93 और 93, 94 नॉर्मली वही रहता है और उसको ब्रेथलेसनेस का इशू नहीं है, तो क्या सर वो रेड फ्लैग रहेगा या उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? रेड फ्लैग हो सकता है, बिकॉज एक कंसेप्ट आई है जो कोविड-19 के बारे में हम लोग खुद एक पिछले एक दो महीने में जान पाए हैं, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन लेवल। ओके, हैप्पी ये वर्ड क्यों जोड़ा गया है कि नॉर्मली अगर आप और मुझे हाइपोक्सिया यानी लो ऑक्सीजन लेवल होगा तो हम लोग बहुत जैसे पानी के बाहर जैसे मछली निकल के आएगी तो कैसे तड़पती रहेगी, तो ह्यूमंस को अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं और सांस हम लोग खींचते रहते हैं। तो हैप्पी हाइपोक्सिया एक स्टेट होती है जहां पे जैसे आपने कहा 92, 93, 94 का सैचुरेशन हो जाता है ऑक्सीजन का, लेकिन पेशेंट फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है, कुछ पूछे तो ज्यादा ब्रेथलेस नहीं है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो वो एक्चुअली एक फेज मानी जाती है जो थोड़ा अगर जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको रिकवर वहां से कराने में आसानी हो जाती है। तो द कट ऑफ याद रखिएगा, घर पे अगर 95% के कम अगर सैचुरेशन मिलता है तो हमेशा एक मेडिकल अटेंशन सीख किया करिएगा। Okay, sir. Thank you. Sir, one more question is that how should we differentiate normal cough with COVID cough? क्योंकि अभी बारिश में लोग बोलते हैं हमें कफ बहुत होता है, तो हम लोग उधर कैसे डिफरेंशिएट करें कोविड और नॉर्मल कफ में? कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों कॉमन कोल्ड की वायरस और कोविड वायरस ये सेम फैमिली से बिलोंग करती है। तो जैसे एक फैमिली की खासियत होती है, वैसे इस फैमिली की खासियत है कि सर्दी जुकाम खांसी कराएगा। इसलिए वो जो मैंने चार प्रकार के रेड फ्लैग आपको गिनाए थे कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी वल्नरेबल सबसेट्स में होती हो तो मेडिकल अटेंशन सीख कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी किसी डॉक्टर को पूछ के टेली कंसल्ट करा के दवाइयों पे अगर जल्दी रिकवर नहीं हो रही है, 24 घंटों में सिम्टम बढ़ रहे हैं, बुखार बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस बढ़ रहा है, तो वो रेड फ्लैग नंबर 2 हो गया। एंड रेड फ्लैग नंबर 3, हमेशा याद रखिए बढ़ते सिम्टम्स कि आज सर्दी जुकाम खांसी हो गई, कल में जुलाब हो गए, परसों में कुछ और हो गया, तो बढ़ते सिम्टम इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। तो इस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट किया करिए। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन एक ऐसा है कि अगर N95 मास्क भी यूज कर रहे तो मास्क को कितने टाइम हम लोग यूज रीयूजेबल कितने टाइम है सर? नहीं करना चाहिए यूज। क्लियर आंसर। N95 मास्क 100% सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ही काम आता है, बिकॉज हमारा संपर्क, हमारा कांटेक्ट और हमारा पेशेंट के साथ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो पहला एड्रेस किया था सबके लिए, उसमें कहा था कुछ भी फेस कवर ये पब्लिक के लिए ठीक पड़ेगा, और यही जवाब सही है, बिकॉज आप कितने मास्क खरीदोगे। आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए मास्क बदलने के दो टाइमिंग होते हैं, दो टाइम ड्यूरेशन होते हैं। तो दो प्रकार के मास्क है, सर्जिकल मास्क है और N95 का मास्क है। तो सर्जिकल मास्क 6 से लेके 8 घंटों में चेंज करना चाहिए, नंबर 1। और N95 मास्क मिनिमम 24 आवर्स में चेंज करना चाहिए। ये दोनों टाइम ड्यूरेशंस के अलावा अगर अंदर से आपका मास्क गीला हो गया,
बिकॉज आप बात कर रहे थे और वो थोड़ा थूक उसके ऊपर अंदर से आया, या आप इनएडवर्टेंटली खास गए या छींक गए और अंदर से मास्क गीला हो गया, तो ये 2 वजह फिर 2 घंटे में भी हो गए तो आपको आपका मास्क चेंज करना है। तो कहने का मतलब आम आदमी फिर कितने बार मास्क चेंज करे? उससे अच्छा अगर जैसे औरतों का दुपट्टा होता है, पुरुषों का बड़ा रुमाल होता है, रोज पहनिए, रोज घर पे आके अच्छे से धो डालिएगा, तो इट्स इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ पर्सन हैज नो सिम्टम्स एट ऑल, ही इज एसिम्प्टोमेटिक, नो फीवर, नो कोल्ड, नो कफ, taste sense are okay, no breathlessness, but person has lost smelling sense and has a history of mild asthma and dust allergy. So is losing a smelling sense an early symptom of corona? Are there and there are none other symptoms? या सो अभी जैसे जैसे ये एक नया सिम्टम हाल ही 1 महीने भर में फाइंड आउट हुआ है कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, ये 2 सिम्टम भी कोरोना के माने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि नॉट एवरी टाइम कि सभी की अगर लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होगी तो कोविड ही कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। बाकी वजहों से भी हो पाएगा, लेकिन बेस्ट होता है कि अगर जैसे आपने हिस्ट्री में कहा कि वो इंसान को अगर पहले से अस्थमा है, तो अस्थमा एक खुद ही एक वल्नरेबल चीज हो जाती है कोरोना के लिए, बिकॉज प्राइमरी टारगेट अफेक्शन लंग्स का है और एस्थमेटिक इंडिविजुअल में लंग्स कमजोर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो शुरू से ही अगर मेडिकल अटेंशन फर्स्ट सिम्टम पे ही ले ले तो अच्छी बात होगी। Okay, thank you sir. Sir, in one family there are 2 positive cases and 2 negative. Should they live together with, can they be asymptomatic? How should we deal in such cases? सो आइडियली अगर 2 पॉजिटिव है और उनका घर काफी बड़ा है और दोनों को अलग अलग आइसोलेशन में रखा जा सकता है, तो पॉजिटिव वालों को तो अलग अलग रूम में रखना, सॉरी सेम रूम में लेकिन आइसोलेशन में रखना जरूरी है। 2 पॉजिटिव इंसान सेम रूम में जरूर रह सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट ट्रांसमिट टू ईच अदर एनी मोर, लेकिन वो बाकी लोगों को जरूर जो एसिम्प्टोमेटिक है या शायद नेगेटिव भी हो उनको डेफिनेटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज कि वो दोनों को एटलीस्ट एक अलग कमरे में रखिए। उस कमरे में अगर वॉशरूम अलग सा रहा तो बहुत ही अच्छा। किसी वजह से अगर वो वॉशरूम अलग नहीं है, घर में एक कॉमन वॉशरूम है, तो वॉशरूम का रोटा करना फिर जरूरी होता है। तो रोटा कैसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव लोग शायद दिन के आखिर में स्नान कर ले, बाकी लोग दिन के सवेरे में स्नान करें, तो एक फासला हो जाता है। दूसरा, अगर टॉयलेट यूरिन या स्टूल के लिए इस्तेमाल करना हो तो एक आधे घंटे का फासला होना चाहिए हर इंडिविजुअल, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इनके इसमें, तो ऐसा एक रोटा किया जा सकता है। नंबर 2, पॉजिटिव इंसानों की ख्याल रखने के लिए, खाना देने के लिए, कुछ दवाइयाँ देने के लिए हमेशा एक ही इंसान घर का अपॉइंट किया जाना चाहिए, और वो इंसान थोड़ा सा तंदुरुस्त हो, यंग हो, कोई उसको बीमारियां ना हो तो और ही अच्छा। और जितने बार वो उस रूम से अंदर बाहर करे, जाते वक्त आते वक्त अच्छे से हाथ वॉश करना ये जरूरी होता है। और नंबर 3, ये दोनों प्रकार के लोगों ने, बिकॉज अभी आइसोलेशन जरूरी है, तो पॉजिटिव लोगों ने भी उनके कामकाज की चीजें और नेगेटिव लोगों ने भी उनके कामकाज की चीजें वो उनके उनके एरियाज में पहले से रख लिए। जैसे मोबाइल का चार्जर्स है, कपड़े है, कुछ अदर बाकी पर्सनल सामान है, तो बार बार किसी वजह से जाना मिलना उस परिसर से अवॉइड हो पाएगा। तो इस प्रकार से होम आइसोलेशन इज डेफिनेटली पॉसिबल। यस, थैंक यू सर। सर अभी एक क्वेश्चन ऐसा है, कोविड रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर समझो किसी को चेस्ट में कुछ कफ में प्रॉब्लम आ रहा है या इन्फेक्शन लग रहा है, तो एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी लोग कर रहे हैं, सर इज इट अ कंक्लूसिव एविडेंस, या सर कैसे रिलाई करना चाहिए, या अगर सर इमरजेंसी में क्या सर ट्रीटमेंट करना चाहिए तो अगर ये किधर भी सवाल बेड्स अवेलेबल नहीं? यस सर। तो ये सवाल भारत के डॉक्टर्स के लिए कोई नया नहीं है, बिकॉज आपको जो मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने, हर एक इंसान ने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन देखा होगा। तो फॉर एग्जांपल, मलेरिया किसी का नेगेटिव था और डॉक्टर ने ठंडी बुखार देखकर, बारिश का मौसम देखकर मलेरिया की दवाई दवाई दे दी और इंसान ठीक हो गया। किसी का मलेरिया डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आया, लेकिन डेंगू के इलाज से वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब भारत में हमें तो एज डॉक्टर्स यूज टू होता है कि अपने देश में काफी हद तक बीमारियां रिपोर्ट पे नेगेटिव आ सकती है, बट हम लोग क्लिनिकल पिक्चर बहुत देखते हैं। मौसम देखेंगे, हालात देखेंगे, सिम्टम देखेंगे। और आज में हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं कि दवाइयां पहले दिन पे शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि कोविड की रिपोर्ट हो ना हो, एक्सरे पे चित्र हो ना हो, सीटी पे चित्र हो ना हो, दवाइयां काफी हद तक हम लोग आज शुरू कराने से शायद 1-2 दिन रिपोर्ट आने में भी चले जाए या वो चित्र सामने आने में भी चले जाए, एक प्रकार का इलाज डे 1 शुरू हो जाता है।
तो ये एक इत्मीनान रखिएगा कि wherever you go, most of the doctors follow today a protocol जहाँ पे day 1 को दवाइयाँ शुरू की जाती है। नंबर 2, CT हो, एक्सरे हो, याद रखिए none of them are conclusive, they are supportive investigations. तो हाउ डू वी डायग्नोस कि अगर सर्दी खांसी के सिम्टम है, ये फिलहाल मौसम शुरू है जहाँ पे एपिडेमिक काफी है, उसमें साथ सीटी एक्सरे में कफ दिखा दिया है, तो ये 2-4 चीजों को इकट्ठा लेके कोरोना कोविड का डायग्नोसिस भी किया जा सकता है स्वैब रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद। तो दीज आर सपोर्टिव एविडेंसेस। Okay. Ankit, Thank you, sir. can I ask some questions? Sir, एक question है. Yes, I am having some questions, Kaushik bhai. हाँ Yes. ठीक है ठीक है Sir, उनका ही एक क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है. या हाँ, हाँ बोलो बोलो तो सर एक क्वेश्चन ऐसा था. 1 second. One of my relative has breathing issues before this disease. What precautions can be taken for those people and precautions to be taken for toddlers? Right. So, breathing issues, if the gentleman is already having breathlessness before the COVID-19 situation began, then probably it could be breathlessness because of other reasons. Because याद रखिएगा, COVID-19 ये एकमात्र बीमारी फिलहाल नहीं शुरू है. एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और डेंगू मलेरिया ये सारी शुरू ही है. तो कहने का मतलब बाकी वजहों से भी ब्रेथलेसनेस हो सकती है. तो बेस्ट इज अगेन डॉक्टर को दिखाना, इन्वेस्टिगेट कराना और डायग्नोस करा के ही ब्रेथलेसनेस का इलाज कराना इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Number 2, when it comes to toddlers, luckily for some reason, this virus is pretty much less sort of aggressive in children. पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया का अगर स्टैटिस्टिकल ये निकाले तो 0.3% की बस अफेक्शन है बच्चों में, which is good, which is we are very lucky about. But having said that, don't ignore symptoms in children. अगर कहीं सर्दी जुकाम दिखती है तो पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करिएगा एंड एक कुछ इलाज अगर इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो शुरू करा लीजिएगा. ओके सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मेरे कोवर्कर को कोविड पॉजिटिव था और मैं उसके साथ काम कर रहा था और अभी 8-9 दिन हो गए और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो मुझे कब तक फैमिली के साथ आइसोलेटेड रहना चाहिए और कब तक मुझे इन्फेक्शन आने का चांस है, सिम्टम आने का चांस है? राइट. सो 2 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 1, अगर आप और अभी तो फिलहाल मैंडेटरी किया है, तो जब तक सिंपल मास्क भी पहना हुआ है हमेशा का, अब बिना ऐसे हमेशा बस खाना पीना के समय निकालना, बाकी जहां जहां घर के बाहर है और आप मास्क पहने हो, तो याद रखिए द वर्ड यूज्ड इन WHO, CDC एंड ICMR, द रिस्क ऑफ एक्सपोजर इज नेग्लिजिबल. ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जब तक आपने मास्क पहना है आपको एक्सपोजर किसी पॉजिटिव पेशेंट से नेग्लिजिबल होती है. दैट्स द आंसर 1. आंसर नंबर 2, अगर आपको एक्सपोजर हो चुका है, वायरस आपके भीतर चला गया है, तो डे 2 से लेकर डे 14 तक, कि जैसे मान लीजिए टुडे वी आर ऑन थर्सडे द 9th ऑफ जुलाई, तो अगर आज में किसी को एक्सपोजर होता है तो 11th ऑफ जुलाई से लेकर 14 डेज तक एक सिम्टोमेटोलॉजी आ सकती है. उसके आगे में रिस्क फैक्टर नहीं है, उसके आगे सिम्टम नहीं आए तो फिर आई मीन एक्सपोजर आपको हो भी सकता था, लेकिन आपके बॉडी ने आपकी इम्यूनिटी उस वायरस को कंट्रोल कर लिया. ओके सर, एक नॉर्मल पल्स रेट आपने 95 प्लस बताया, नहीं तो नीचे जाएगा तो रेड फ्लैग है. और सर हायर एंड में उसका क्या मार्क है और हार्ट रेट कितना होना चाहिए? वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. राइट. सो ऑक्सीजन सैचुरेशन का अपर लिमिट हमेशा 100 है, जो थोड़ा सा शहरों में खास करके बॉम्बे वगैरह जगह में मुश्किल है, बिकॉज पोल्यूशन इतना होता है कि अपने आप पे 98, 99, 97 तक का भी नॉर्मल मान लेते हैं. तो अपर लिमिट वो है, लोअर लिमिट डेफिनेटली 95 के नीचे ना हो, वो सैचुरेशन का लिमिट हो गया. हार्ट रेट नॉर्मल होती है 80 to 80 to 85. तो अगर किसी में 90, 95 या ट्रिपल डिजिट्स में जा रही हो, दैट्स अ रेड फ्लैग. ओके एंड सर लोअर साइड में तो अगर 60-65 है तो सर? हाँ 60-65 है तो अगर इट्स अ वरी. तो ये दोनों एक्सट्रीम्स को यू हैव टू बेयर इन माइंड. Okay, sir. Sir, any special precautions to be taken for those patients who are cancer patients? राइट. तो कैंसर सर्वाइवर्स जो हो जाते हैं ना, वो थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं, बिकॉज जो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, वो उनकी इम्यूनिटी कम करने वाली मेडिसिन मानी जाती है. तो वो खुद ही जैसे वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं, बिकॉज द इम्यूनिटी इज लो बिकॉज ऑफ द मेडिसिन दे आर अपॉन. तो ऐसे लोगों में कपल ऑफ टिप्स आई कैन गिव. ये सारा जो मैंने 5 बातें कही, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज तो जरूरी है.
उसके अलावा उनके कैंसर स्पेशलिस्ट ने हमेशा उनको एक एडवाइस दिया होगा कि साल में एक बार आपके वैक्सीनेशन जरूर कर लिया करो, एनुअल वैक्सीनेशन, वो नहीं छोड़ना है। नंबर 2, इन लोगों को खास हेल्थ चेकअप्स वंस अ ईयर बहुत जरूरी है, तो हेल्थ चेकअप करा के बाकी की सेहत भी कैसी है, कोविड कोरोना में ओवरऑल हेल्थ वो लोग जान लेनी चाहिए। नंबर 3, अगर नहीं भी हो सके तो थोड़ा सा एक जरूरी है किसी प्रोफेशनल दिखाना बहुत जरूरी Okay, sir. Sir, the next question is, can COVID be cured with online consultation? If we are isolated at home and we do online consultation, है। राइट। सो एक पिरामिड आपको मैं सॉर्ट ऑफ इमेजिन करने चाहूंगा कि आप, इफ यू कैन इमेजिन अ सिंपल पिरामिड, तो इस पिरामिड में ऐसा दिखाया गया है कि 80 to 85% लोग लोअर इसमें आते हैं, जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस है। 15% लोग मिडिल के ब्रैकेट में आते हैं एंड हार्डली 5% लोग ऊपर के पीक में आते हैं। सो इस पिरामिड का मतलब क्या है? तो 80% लोग जो बेस में आते हैं ना, वो सिंपल पेशेंट्स है जो घर में मैनेज हो सकते हैं या ये सिंपल क्वारंटाइन सेंटर में मैनेज हो सकते हैं। 15% लोगों को, जैसे मैंने कहा, कोविड हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है एंड 5% लोगों को आईसीयूज तक जाना पड़ रहा है, विच इज हाउ द प्रेजेंट ग्राफ इज ऑफ द वायरस, विच इज गुड फॉर अस। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर 80% लोगों को घर पे ही मैनेज या सिंपल क्वारंटाइन सेंटर्स में भी किया जा सकता है, तो टेली कंसल्टेशन डेफिनेटली इज अ वायबल ऑप्शन, बिकॉज उस पे काफी बार आपको यही जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन पूछा जाता है, आपका डायबिटीज रहेगा तो आपका शुगर पूछा जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर पूछा जाएगा, एक वीडियो कॉल पे आपसे, आपको देख के आपसे बातें हो सकती है। तो टेली कंसल्ट से डेफिनेटली मैनेजेबल है। जहां डॉक्टर ने कहा कि तुरंत अस्पताल निकल के आइएगा, वहां बेझिझक यू शुड ऑल्सो सीक अ पर्सनल कंसल्टेशन वेर एवर रिक्वायर्ड। सर जो निमोनिया स्पॉट दिखता है एक्सरे में, is that a symptom of COVID, or how can we differentiate that pneumonia spot and COVID? Is it related or not? So first let me explain the meaning of the word pneumonia. लोग काफी हद तक इस शब्द से घबर जाते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया में लोग प्लेटलेट शब्द घबर जाते हैं, वैसे निमोनिया शब्द से लोग घबर जाते हैं। तो निमोनिया बेसिकली मींस कफ इन द चेस्ट। ये सबने याद रखिए कि अगर गूगल सर्च भी करिएगा तो सिंपल लेमैन डेफिनेशन ऑफ निमोनिया इज कफ इन द चेस्ट। तो जैसे अगर ये डेफिनेशन समझ पड़ रही हो, तो जो मैंने शुरू में ही कहा कि ये सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस है कोविड-19 को लेकर, तो अल्टीमेटली ये खांसी तो बनाएंगे ही, वो खांसी बाहर भी आ सकती है, एक्सरे में भी दिख सकती है, लंग में, जिसको निमोनिया कहा जाता है। तो निमोनिया फिर काफी प्रकार के ऑर्गेनिज्म से होगी, इंक्लूडिंग कोविड-19। So not every pneumonia is diagnostic of COVID-19 and not every organism also can cause pneumonia. So that is how it is. सर एक बता रहे कि नॉर्मल digits में 100 to 105, 108 अलार्मिंग है। नहीं, मेरे को सवाल सुनाई नहीं दिया। 1 second. Members to please mute. मयूर भाई, can you mute all? अंकित जी म्यूट करवा दीजिए ना सबको। हाँ जी प्लीज सर। यस अंकित, यस सर। सर ऐसा पूछा, हाँ मयूर भाई, यस सर, ऐसा पूछा जा रहा है कि बच्चों में हार्ट बीट्स 100 प्लस नॉर्मली 102, 105, 108, तो क्या सर वो कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है या नॉर्मल है? थोड़ा मेरे एक्सपर्टीज दायरे के आगे का सवाल है, बिकॉज आई एम एडल्ट फिजिशियन, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन नहीं देख पाता, लेकिन कहने का मतलब हर एक बढ़ने वाली पल्स कोई हमेशा ही अलार्म से, याद रखिए सिंपल बुखार भी जब आता है तो फीवर की फर्स्ट रिएक्शन होती है बॉडी की पल्स बढ़ा दे, वो नॉर्मल बॉडी की एक रिएक्शन है। तो कहने का मतलब पल्स फीवर से भी बढ़ सकती है और पल्स किसी इन्फेक्शन से भी बढ़ सकती है। तो बेस्ट इज लेट द पीडियाट्रिशियन डिसाइड, आप और हम उसमें आई थिंक जहाँ, बिकॉज बच्चों का जहाँ होता है, दे आर वेरी वेरी टेंडर एज एंड वेरी ऐसा फ्रेजाइल उनकी हेल्थ सिस्टम होती है, तो जल्द से जल्द पीडियाट्रिशियन को दिखाना और उनको डिसाइड करने देना इज द राइट आंसर। यस सर। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस है, उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो उधर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे पेपर्स, फाइल्स, इससे क्या कोविड सरफेस पे रहता है? फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या वो एयर में रहता है?
तो एसी ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक ये क्वेश्चन है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सो अनफॉर्चुनेटली अभी अपने यहाँ पे सेंट्रल एसीज हर जगह है। आई मीन आप आपके ऑफिसर्स की बात कर रहे हो, मैं तो कहूंगा अनफॉर्चुनेटली अस्पताल भी सेंट्रल एसी हो चुके हैं। सो सेंट्रल एसी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, बिकॉज ट्रॉपिकल कंट्री है, काफी हद तक अपने आप ही हीट होती है, तो एसीज हैव बिकम द नॉर्म। बट इफ यू वांट मी टू गिव अ थ्योरेटिकल आंसर, जो किताबों में लिखा है कि जितनी खुली ओपन वेंटिलेशन, इनफैक्ट हम लोग थोड़े टाइम पहले होम आइसोलेशन की बात कर रहे थे, वहां पे एक पॉइंट मैंने कहना भूल गया कि होम आइसोलेशन करते वक्त जो पॉजिटिव केस है वहाँ स्पेसिफिकली कहा जाता है कि खिड़कियां खोल के रखिए रूम का, जितना फ्रेश एयर आएगा हमेशा अच्छा। तो थ्योरेटिकल आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि अगर विंडोज है तो प्रेफरेबली ओपन देम, अगर नहीं है सेंट्रली एसी है सो नथिंग रिप्लेसेस, फिर आप बार बार जाके हैंड वॉशिंग कीजिए, थोड़ा सा गार्गलिंग स्टीम कर लिया करो। सो पर्सनल प्रोटेक्शन मैटर्स। एयर में ये वायरस अभी तक जो आया है ऐसा उसमें कहा गया है कि ज्यादा टाइम एयर में नहीं रह पाता, इट्स अ हेवियर एंड अ लार्ज वायरस, तो जल्दी से सेटल हो जाता है। आधे घंटे का साइंटिफिक टाइम दिया गया है, इसलिए मैंने एक थोड़ा टाइम पहले कहा कि होम आइसोलेशन में आधे घंटे का फासला होना चाहिए बिटवीन एनीबडी यूजिंग अ वॉशरूम एंड द अदर पर्सन, बिकॉज तब तक वो सारे जमीन पे सेटल हो जाता है ड्रॉपलेट्स, एंड उसमें वायरस भी सेटल हो जाता है। एंड क्वेश्चन अबाउट वायबिलिटी ऑन अ इनर्ट सरफेस, जैसे आपके टेबल टॉप्स है, आपके फाइल्स है, उस सवाल का जवाब है नोबडी नोज, अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो उससे अच्छा, रादर एंड गेटिंग इनटू द डिस्कशन की 2 घंटे रहेगा या 4 घंटे रहेगा, द इजियर ऑप्शन है जो हम लोग अस्पताल में खुद कर रहे हैं कि अपनी जो वर्क स्पेस है, जैसे घर में एक आदत है कि खुद के जरा घर को साफ कर लो, टेबल टॉप्स वगैरह, फिलहाल लॉकडाउन था, वैसे भी घर पे मेड्स नहीं आ रही थी, तो आप और मैं, हम सभी लोग घर में जो साफ सफाई कर रहे थे, तो हम लोग क्या एडवोकेट करते हैं कि ऑफिसेस में भी आपकी इंडिविजुअल जो वर्क स्पेस है, आपके टेबल टॉप है, आपके आर्म रेस्ट है, आपका जो चेयर होगा, आप सिंपल एक अल्कोहल का स्वैब लेके अगर उसको बीच बीच में 2 घंटों में 4 घंटों में पहुंचोगे ना, तो पहुंचने से पक्का एटलीस्ट वायरसेस आर, बिकॉज अल्कोहल है तो दे विल बी किल्ड। तो रादर देन गेटिंग इनटू द डिस्कशन कि कितने घंटे तक सरवाइव करेगा और इनर्ट सरफेस, आप रूटीनली एक जैसे क्लॉकवर्क के जैसा थोड़ा सा समय मिल गया बीच में, सरफेसेस पोंछ दिए, मोबाइल पे बात करते करते भी अगर आप टेबल पोंछ दिए, ये पोंछ दिए, तो एटलीस्ट यू आर सेफ। यस सर, 2-3 क्वेश्चन मैं कंबाइन करना चाहूंगा कि अगर प्रिवेंटिव तौर पे हमको कोई मेडिसिन लेना है, सबसे पहली चीज उन्होंने ये पूछा कि आर्सेनिक एल्बम 30 क्या ये इफेक्टिव है, तो इसके साथ हमें कुछ लेना है सप्लीमेंट्री, या ओनली आर्सेनिक एल्बम 30 कोविड का ट्रीटमेंट कर सकती है? फर्स्ट ये। सेकेंड ये सर कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या डाइट लेना चाहिए, या आप कोई आयुर्वेदा मेडिसिन सजेस्ट करोगे, या कोई एलोपैथी मेडिसिन, कोई भी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एज अ प्रिकॉशनरी क्या लेना चाहिए सर? राइट, तो वो दोनों जो सवाल है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयाँ वाले, उनके लिए मैं कॉमन जवाब देना चाहूंगा कि बेसिकली मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, वहाँ उनके ऊपर कमेंट कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। बट इतना पक्का कह पाऊंगा कि अगर वो लेना भी हो तो किसी को पूछ के, एक प्रैक्टिशनर को पूछ के, उनकी एडवाइस के हिसाब से, बिकॉज अल्टीमेटली दवाइयाँ है, ये जो ऊपर से बांट रहे हैं और ऊपर से कंज्यूम की जा रही है वो गलत बात है। कि जो क्वालिफाइड होम्योपैथ है, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक है, उनको पूछ के, बिकॉज हर एक पेशेंट को तपास के ही कोई भी किस्म की दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये एक फैक्ट है। तो थोड़ा सा पूछ के कंसल्टेशन से किया करो, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो घरेलू नेचुरल उपाय होते हैं फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, जो दवाइयाँ जो मानी जाती है, उनके बारे में कहना चाहूंगा। जैसे हल्दी है, जो जो शहद होता है फॉर एग्जांपल, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि इफेक्टिव है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट सेफ जरूर है। सो लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मफुल नहीं है, फायदा होगा कि नहीं आई डोंट नो, तो लेने में हर्ज तो वैसे कोई नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, एलोपैथी हो या कोई भी हो, आई वुड नेवर एडवोकेट ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर इम्यूनिटी। जैसे शुरू से मैं कह आ रहा हूँ, 5 थिंग्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मास, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन वर्क्स। तो उसमें न्यूट्रिशन में रोटी सब्जी दाल चावल सभी खा रहे हैं, आप खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, इट इज अबाउट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अ डे। तो वी नीड 5 न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस। सो कैल्शियम जरूरत है तो ग्लास ऑफ मिल्क सभी ने लेना जरूरी है, इजीएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी जरूरी है तो रोज एक 10 मिनट का सनलाइट, अगर रोज नहीं हो पाता तो वंस अ वीक 20 मिनट 25 मिनट्स भी कर लो, फिर भी चलेगा, दैट इज न्यूट्रिएंट नंबर 2। न्यूट्रिएंट नंबर 3 इज विटामिन बी 12। तो रोज के 2 बादाम और 2 अखरोट खाइएगा, 2 से ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो 2 आलमंड से सारा जो बी 12 दिन का जरूरी है वो मिल जाएगा। नंबर 4 इज बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के लिए फ्रूट,
और हाल ही में खास करके कोविड और इन वायरसेस के लिए सिट्रस फ्रूट्स, जो मौसम्बी है, संतरा है, उनमें विटामिन सी भी आ गया, तो ये बहुत जरूरी होता है। एंड लास्टली मिनरल्स, तो मिनरल्स हमेशा आते हैं सैलेड्स और वेजिटेबल्स से। तो 5 न्यूट्रिएंट्स, मिल्क, sunlight, almond walnut, fruit, vegetable salads are specifically to be consumed on a daily basis. उसमें ऐड करना चाहूंगा वाटर। काफी लोग गिन के पानी नहीं पीते, तो 2-2.5 लीटर्स अगर गिन के पिया करिएगा तो उतना पानी जरूरी होता है फॉर द सिस्टम। एंड लास्ट इज एक्सरसाइज, डू नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेली वॉक। आप ये सारा खाना पीना ठीक से करने के बावजूद भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इम्यूनिटी 100% नहीं बनती। 50% इज न्यूट्रिशन, 50% इज एक्सरसाइज। ओके सर, थैंक यू। सर अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि आजकल हॉस्पिटल में बेड्स की शॉर्टेज बहुत है, और अगर घर पे कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो सर हम लोग को मतलब आगे प्रोसीड कैसे करना चाहिए? जैसा भी जो स्टैंडर्ड व्हाट्सएप पे घूमता है मैसेज, आप ईसीजी करा के एचसीक्यू लीजिए, साथ में एसजी लीजिए 4-5 दिन, लिम्सी लो, बिकोजिंग लो, जो भी नॉर्मल व्हाट्सएप डॉक्टर वाला कंसल्टेशन चल रहा है, तो सर उसमें आपका ओपिनियन क्या है सर? कैसे उसमें आगे प्रोसीड करना चाहिए? अगर बेड भी नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और घर पे ही ट्रीटमेंट करना है, तो सर क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज किसी एक क्वालिफाइड एमडी फिजिशियन से टेली कंसल्ट पे बातें करना, या उनके क्लिनिक को जाके फिजिकल कंसल्टेशन करा के ही दवाई लेना। 10 लोगों से 10 राय लेके या 10 डॉक्टरों को भी पूछ के एक्चुअली हॉच पॉच ट्रीटमेंट हो जाता है। तो किसी एक के राय से कीजिए तो हमेशा अच्छा। दैट इज वन। नंबर टू, अस्पतालों में बेड की शॉर्टेज जरूर है, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ बेड्स ही होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स है अनफॉर्चुनेटली। तो बस आपका वहाँ नाम नंबर दर्ज करा के वेटिंग लिस्ट पे एक नाम दर्ज करना इज द ओनली वायबल ऑप्शन, बिकॉज जैसे वो लिस्ट ऊपर ऊपर सरकेगी आपको अल्टीमेटली फोन आ जाएगा। तो जहां पे भी आप ट्राई कर रहे हो फॉर अ बेड, वहां हमेशा वैसे ही फोन रखने से पहले आप आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखोगे तो वेटिंग लिस्ट में चले जाता है। So that's a viable option. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। Which is better source of vitamin, Anarch 1000 or 1 second? Is it Anarch 1000 or Juicy? ZUCEE or Anarch 1000? नींबू is the richest source of विटामिन सी। रोज का एक लाइम Okay, कर लो। अगर yes दवाई sir. क्यों खानी है, आधा लाइम स्क्वीज कर लो लंच के ऊपर, आधा लाइम स्क्वीज कर लो डिनर के ऊपर। तो खट्टास जो होती है, बिकॉज एक तरफ याद रखिए, खट्टे चीजें खाने से गला भी पकड़ सकता है, ये काफी लोगों ने देखा गया है। तो ज्यादा खट्टा खाइए और उसी से गला धर गया तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल लाइम, अगर एक आधा लाइम काट के आप दाल सब्जी पे लंच में स्क्वीज कर लो और वैसे ही डिनर पे स्क्वीज कर लो, तो उसकी खटास भी निकल जाती है, एंड लाइम अडे ऑटोमेटिकली द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। Okay. Sir, one of the patient is having continuous cough since last 1 month, but all his X-ray reports are clear. ब्लड रिपोर्ट भी करता है, सब परफेक्ट है। तो सर एक अब मेरे को उसने बताया नहीं कि ड्राई कफ है या वेट कफ है, तो सर वो केस में उसको कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए, ऐसा उसका क्वेश्चन था। वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन इस वेबिनार पे आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जब तक यस ये केस यस पूरी तरह से देख नहीं पाऊं, पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर पाऊं, एक्सरे या सीटी स्कैन जो कुछ भी है देख नहीं पाऊं, तो सिंपल इतने सवाल पे आंसर देना बहुत मुश्किल है। जो जवाब दूं शायद वो शायद वो गलत ठहर जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि पर्सनल अपने जो मेडिकल यस ये है प्रॉब्लम्स वो यहाँ ना पूछे, वो आपके पर्सनल डॉक्टर को या मुझे इंडिविजुअली कनेक्ट करा के आई कैन ट्राई टू सॉल्व देम फॉर यू। ओके, थैंक यू सर। सर व्हाट इफ समवन इज एलर्जिक टू लाइम और साइट्रिक एसिड फ्रूट्स, तो उसको सर विटामिन सी इंटेक कैसे लेना चाहिए? विटामिन सी के सोर्सेस काफी कुछ है, आंवला है, काफी हद तक यू कैन हैव लिटिल ऑफ दैट। थोड़ा सा अगर जैसे काफी सारे ही सिट्रस नेचुरल सप्लीमेंट्स को आप एलर्जिक हो, तो ऐसे कंडीशन में फिर जरूर है कि आप साल में एक बार जो पूरा वो एक विटामिन की एक जैसे किट आती है, उस किट में जो जो मैंने ये कहा, विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, इन सभी का कॉम्बिनेशन करा के एक 3-1 महीने अगर साल में एक बार ले लो तो उससे सप्लीमेंटेशन हो जाती है। सो पीपल हु आर एलर्जिक नॉट ओनली टू विटामिन सी, द पीपल जिसको मिल्क टॉलरेट नहीं होता, किनको कुछ और सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट टॉलरेट नहीं होते, वो फिर साल में एक बार या 3 महीने करना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके,
So you have answered almost all the questions. The last question, that if someone is having headache for 3 to 4 days, is it a red flag? हाल ही के माहौल में अभी जैसे ये हेडेक और बैक पेन नए सिम्टम्स ऐड कर दिए गए हैं, तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज कि अगर वो इंडिविजुअल माइग्रेन का पेशेंट हो या उसको फ्रीक्वेंट हेडेक्स वैसे ही होते रहते हैं और अभी भी 3 दिनों से हो रहा है, तो शायद किसी और वजह से हो। लेकिन हेडेक इतने फ्रीक्वेंटली उस इंसान को नहीं होते हो और हाल ही में एज अ न्यू फीचर, न्यू सिम्टम शुरू हुआ हो, देन डेफिनेटली कैन बी अ रेड फ्लैग। ओके सर, एक मेंबर का क्वेरी ऐसा है कि इज दिस कोविड टेस्ट अ रिलायबल वन? क्योंकि वो बता रहे जैसे एक उनके फादर को कोविड नेगेटिव आया था, आफ्टर ही डेवलप सिम्टम्स ऑफ फीवर, आफ्टर 12 days he टेस्टेड एंड ही वाज नेगेटिव, और अभी वापस उनमें उनको लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है। तो सर उनका बोलना है क्या ऐसा होता है कि पहले उनका जो स्वैब लिया गया वो थ्रोट में नहीं तो लंग्स में इफेक्ट हो गया, इसलिए नेगेटिव आए, क्या ऐसा हो सकता है सर? एक याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कि किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में, व्हेन आई से बीमारी आई मीन इन्फेक्शंस, फिर वो ट्यूबरकुलोसिस हो कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या अभी कोविड-19 हो, एज अ डॉक्टर हम लोग कभी भी एकमात्र रिजल्ट पे डिपेंड या डायग्नोसिस नहीं देते। बिकॉज जैसे आप लोग भी देख रहे हो, हम लोग सालों से हमें खबर है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स काफी हद तक आते हैं, और फॉल्स नेगेटिव की वजह कोई गलत तरीके से स्वैब कलेक्ट कर रहा है या टाइमिंग गलत हो गया, ऐसे बातें होते भी है और नहीं भी होते हैं। मेनी टाइम्स याद रखिए कि ऑर्गेनिजम्स भी हमारे केमिकल एजेंट्स को फाइट कर जाते हैं। सी, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऑर्गेनिज्म को भी सर्वाइव होना है, हमें भी सर्वाइव होना है। तो वो जैसे बॉडी के भीतर भी उनकी रेजिस्टेंस बढ़ा के हमारे इम्यूनिटी के खिलाफ काम करेंगे, हमारे दवाइयों के खिलाफ काम करेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म वो जो केमिकल टेस्ट इस्तेमाल की जाती है लेबोरेटरीज में, उसके खिलाफ भी एस्केप कर जाते हैं। तो काफी बार ऐसे वजहों से भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए किसी का भी डायग्नोसिस किसी भी बीमारी में, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, साइंस, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड द एनवायरनमेंट। ये 4-5 चीजों को इकट्ठा करके ही डायग्नोसिस से फिर हम लोग लिटरली हमारे दिमाग में एवरेज निकालते हैं कि किनको ये 5 बातों में अगर 3 या 4 बातें हमें पॉजिटिव मिल गई और बाकी 1-2 बातों में अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव भी है, तो एवरेज अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो डायग्नोसिस बन गया आपका। Okay. And sir, if someone is detected positive and he has taken all the treatments, तो सर कितने दिन तक मतलब आगे और स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है तो एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद? इलाज शुरू होने के बाद में ऐसा कहा गया है कि यूजुअली आप नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हो विद इन अ वीक। तो मान लीजिए आज अगर थर्सडे के दिन किसी की दवाइयाँ शुरू होती है, तो बाय कमिंग वेंसडे और थर्सडे नॉन इन्फेक्टिविटी आ जाती है। इसलिए वो सारा जो शुरू से 1 वीक आइसोलेशन, 1 वीक का आइसोलेशन का जो एक फंडा बना हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है। Okay. Sir, you have covered all the queries, all the questions. Thank you very much, sir. It was a great Pleasure. session. I Thank you so I much. would request Jitu Ram Rakhyani ji, Vice Chairman of our branch, to please propose a hearty vote of thanks. Thanks, Ankit. So first of all, you have explained us detail about this COVID-19 coronavirus, and you have shared your detailed in-depth knowledge in this thing with us. First, 5 things you explained that is a basic thing we should do to keep us away from this virus. 5 things I will repeat: social distance, proper mask, hand hygiene, nutrition, and exercise. This is the best way we can take care of ourselves and keep away this dangerous virus. And also, you have explained us red flags: vulnerable situation, pulse down, and nutrition low, like not liking to eat anything. So you have explained us in detail about what to do, and also have answered to all the questions of our participants. So on behalf of our Kalyan Dombeli branch of Institute of Chartered Accountants of India, I propose hearty vote of thanks to Sir for sharing your guidelines on this pandemic. Thank you so much, sir, for guiding us on this topic. Thank you so much. Back to you, Mayur. If I may, I just would like to thank all of you. I once again take Yeah, the thank you. opportunity
of thanking and making everybody realize that it's a very responsible gesture you all have shown by coming and listening to me this evening. Makes me realize that there are a lot of responsible people and citizens out there. I would just request every one of you that don't keep this knowledge to yourself. आज में ही जाके जो आपके नेबर्स है, फ्रेंड्स, फैमिलीज है, अगर यही बातें सबको दोहराओ, तो एज अ सोसाइटी वी बिकम एनलाइटेंड एंड वी बिकम इंटेलिजेंट. तो वो जो अब्यूज हो रहा है, अब्यूज ऑफ मेडिसिन, अब्यूज ऑफ किसी को इन्वेस्टिगेशन, इज बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज. तो आप प्लीज सभी को प्रॉपर नॉलेज फैलाइए. दैट्स हाउ एट लार्ज वी ऑल बिकम इंटेलेक्चुअल पीपल. Yes, sir. सर Thank you आपने very much, बहुत sir, सारे for the myths guidance. जो बहुत यस Yeah. सर जो बहुत सारे मिथ्स थे आपने वो हमारे दिमाग से सब क्लियर कर दिए, क्योंकि आज तक सब लगता था नहीं ऐसे होता है, लेकिन ये सर सेशन बहुत यूजफुल था क्योंकि आपने बहुत मिथ्स हमारे क्लियर किए सर. यस सर. थैंक यू. थैंक यू. यस मयूर. Today we are concluding the session. Just a small announcement. We have a MSME conclave on 18, 19, 25, 26. Please register and have benefit of that. Thank you very much. And we will start close today. Thank you. Thank you so much. चलो, very good.